تو جی اسٹوڈنٹس آپ کو ایک تو سر کے متعلق میں بتا دوں، آپ کے لیے ہم بہترین ٹیچر لے کے آ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کے لیے. آپ یہ ساری ویڈیو سن کے ہمیں آپ نے بتانا ہے کہ سر کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن رہی ہے وہ کیسی رہی ہے اور آپ نے ان کو کیسا پایا. السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں پولیٹیکل سائنس پہ، جو کہ ایک آپ کو پتہ ہے ون آف دا موسٹ ہائیلی جو آپٹیڈ سبجیکٹس ہیں سی ایس ایس کے اندر، پی ایم ایس کے اندر، پی ایم ایس کے پی کے میں، اور ایون جو سندھ پبلک سروس کمیشن کا کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے اس کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید ندیم شرازی صاحب. تھینک یو سر، تھینکس فار یور ٹائم. سید ندیم شرازی صاحب سی ایس ایس کوالیفائر ہیں 2019 کے، اور ماشاءاللہ سے 2-3 سال سے اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی رہے ہیں. ہی از اے لا گریجویٹ اینڈ ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس ایز ویل. تو ان کا ریلیونٹ بیک گراؤنڈ ہے، اور کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی رہے ہیں تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ جو ہے جو جنرل اسٹوڈنٹس کے کویشچنز اور کیوریز وہ تو ہم ڈسکس کریں گے ہی، اس کے علاوہ بھی کچھ چبھتے ہوئے سوالات جو ہے وہ بھی ہم پوچھیں گے ان سے. سب سے پہلے تو شرائع صاحب، جب ہم سیلیبس کو دیکھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس کا جو سیلیبس ہے وہ کافی لینتھی ہے، بلکہ جب سلیبس ریوائز ہوا تھا سی ایس ایس کا 2016 کے اندر تو بہت ہی کم لوگ تھے جو پولیٹیکل سائنس کو آپٹ کرتے تھے. سارے کے سارے اسٹوڈنٹ جو وہ زیادہ تر آئی آر کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے، اور پھر آئی آر میں تھوڑا مار پڑی تو پھر ادھر آنا شروع ہو گئے. اس کی میجر ریزن کیا تھی کہ شروع میں لوگوں نے پولیٹیکل سائنس کو کیوں نہیں آپٹ کیا ایز اے سبجیکٹ؟ سر اسٹارٹ میں جو لوگوں نے زیادہ پولیٹیکل سائنس کے بجائے آئی آر کو آپٹ کیا تو اس میں مین ریزن یہ تھی کہ اس کے ساتھ مینلی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ موسٹلی سبجیکٹس دوسرے جیل ہوتے ہیں، جس طرح سے یو ایس ہسٹری ہے، جس طرح سے آئی لا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک ٹرینڈ بن گیا. تو اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے لوگوں نے زیادہ جو ہے نا آئی آر برا سبجیکٹ نہیں ہے، آئی آر بہت اچھا سبجیکٹ ہے، لیکن ایک ٹرینڈ بریکنگ بھی جو ہے وہ اب سی ایس ایس پورا اگر دیکھے پورا 16 سے آن ورڈ تو وہ ایک ٹرینڈ بریکر، مطلب ایف پی ایس سی نے ٹرینڈ بریکنگ کرنا شروع کی ہوئی ہے. اس وجہ سے پھر لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اس کی بجائے پھر پولیٹیکل سائنس ایک اچھا آپشن ہے، تو اب لوگ پولیٹیکل سائنس کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے. تو اگر کوئی اسٹوڈنٹس پولیٹیکل سائنس آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کی کیا اسٹرینتھس ہیں کہ اس میں اگر آپ پولیٹیکل سائنس آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا اس میں فائدہ ہوگا، اور کیا ویکنیسز، دونوں چیزوں کو آپ کائنڈلی تھوڑا سا ڈسکس کریں؟ سر اوور آل دیکھا جائے تو یہ ویسے تو سبجیکٹ 200 نمبر کا ہے. اب 200 مارکس کے ساتھ آپ کے 400 مارکس جو ہے نا اب پی ایم ایس کے لیے بھی ایکولی اور سی ایس ایس کے لیے بھی 200 مارکس جو ہے نا یہ آپ کے 400 مارکس ایک ہی سبجیکٹ کو آپٹ کرنے سے آپ کے کور ہوتے ہیں. تو اب موسٹلی اسٹوڈنٹس اس میں جو یہ فلاسفرز ہیں ان سے گھبراتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے فلاسفی کا پورشن جو ہے نا وہ مطلب کور نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے وہ دوسرا جو آئی آر یا وہ والے سبجیکٹس وہ ایک جیل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بہتر ہے کمبینیشن. لیکن اگر دیکھا جائے تو جس اسپائرنٹ کو اچھا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا کانسیپٹ اچھا ہو جاتا ہے کہ واٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف پولیٹیکل سائنس، تو وہ سبجیکٹ میٹر پتہ چل جاتا ہے. تو فلاسفی بھی آل اباؤٹ جتنے بھی سارے کانسیپٹس ہیں، اگر فلاسفی دیکھا جائے، فلاسفی ویسٹرن فلاسفی ہے، مسلم فلاسفرز ہے، تو وہ جتنی بھی فلاسفی ہے دونوں ٹائپس کی، تو فلاسفی میں بھی وہ اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ اسٹیٹ ہے. ایوری تھنگ ان دا ایمبٹ آف اسٹیٹ وہ ڈسکس کرتے ہیں. ریسٹ آف دا کانسیپٹس بھی اسٹیٹ کے اکارڈنگلی ہے، اسٹیٹ کو ہی وہ جو ہے ایڈریس کرتے ہیں. تو اب اگر تو تھورلی ان کے کانسیپچل کلیئرٹی ہے ایک فلاسفر کی، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ٹف سبجیکٹ ہے اور یہ مطلب کم ٹائم میں ایز کمپیئر ٹو آئی آر یہ پریپیئر نہ ہو. اچھا، اس میں کافی جو مینٹورز ہیں جو پولیٹیکل سائنس کے، وہ ایک آرگومنٹ دیتے ہیں کہ یہ بڑا میتھوڈیکل اور تھیوریٹیکل سا پیپر ہے، میکینیکل سا جس کو آپ کہیں کہ اس کے لگے بندے سوال کا لگا بندہ سا جواب ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا مارکس آنے کے چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو
IR, आप इस आर्गूमेंट से किस हद तक एग्री करते हैं? सर डेफिनेटली इसमें मार्क्स की रेशो IR से ज़्यादा है, वो इस वजह से, लेकिन हर बंदा इसमें जो है ना वो मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जो भी आपका लगा वो अच्छा स्कोर ले लेगा। इसमें अगर तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अपने एनालिटिकल इसको तैयार किया हुआ है, मतलब CSS आज अगर देखें तो ओवरऑल ट्रेंड भी ये है कि CSS वो क्रैम्ड स्टफ या स्पून फीडिंग नहीं रहा। वो इस्लामियात देखें, दूसरे सब्जेक्ट जितने भी देखें जो कि मतलब इजी समझे जाते हैं कि जो स्टार्ट से ही बच्चा पढ़ रहा होता है, मतलब ये सब्जेक्ट तो इधर आके पढ़ेगा एक एस्पायरेंट या जिसका कोई बैकग्राउंड है वो इसे ऑप्ट करेगा। तो नथिंग इज एज इजी, जो मतलब जिस तरह समझा जाता है। कोई भी अगर सब्जेक्ट है CSS का तो उसे अगर एनालिटिकल और अगर ये फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट्स अप्लाइड सेंस में पढ़े हुए हैं तो मुश्किल नहीं है कि इसमें नंबर ना आए। अच्छा, आपने एक बात की इसमें कि जी को 400 मार्क्स जो है ये आपके कवर कर रहा है, उन 400 मार्क्स से आपकी क्या मतलब 200 मार्क्स तो उसके अपने हो गए, अदर 200 मार्क्स आप कौन से रेफर कर रहे हैं? सर इक्वली मैंने पहले भी बताया कि सर PMS में भी ये 200 नंबर का। अच्छा, मैं समझा था शायद कि ये अदर सब्जेक्ट जिस तरह करंट अफेयर, पाक अफेयर या फिलोसफी या सी लॉ वगैरह को हेल्प कर रहा है। नो सर। सर इसमें अगर देखा जाए तो आपने जैसे मेंशन किया पाक अफेयर्स का भी, तो इसमें काफ़ी हेफ्टी पोर्शन है पाक अफेयर्स का भी। आपकी पूरी फ्रीडम मूवमेंट इसमें आती है, आपके और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको जस्ट वो इस सिलेबस जो इसके सब्जेक्ट का टॉपिक है, सब्जेक्ट के हद तक वो आपके हेल्प आउट नहीं करते, वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इक्वली हेल्प आउट करते हैं। अच्छा जी 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 सर। इसमें एक ये भी आर्गूमेंट है कि जो इसका पेपर 2 है वो इतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, पेपर 1 ज़्यादा स्कोरिंग है, इस आर्गूमेंट को आप बाई करते हैं? नो सर। सर वो इसलिए है कि पेपर 2 में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिस्टम्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो एप्लीकेशन है फिलॉसफी की। ठीक है। जो फिलॉसफी पेपर 1 में जिस एस्पायरेंट ने पढ़ी है और कॉन्सेप्चुअली उसको इन डेप्थ उसको एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ा है, तो वो तो दूसरे पेपर 2 में उसकी एप्लीकेशन है। ओके, गॉट इट। अच्छा, आपने पहले पेपर को जब डिस्कस किया फिलासफर्स को तो आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि सर फिलासफर्स का भी जो मेन एम्फेसिस होगा वो सिर्फ स्टेट, मतलब स्टेट और गवर्नेंस और इसके रिलेटेड होगा। अब फिलासफर्स ने तो बहुत सारी चीज़ों पे काम किया होगा, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम सिर्फ उनका जो स्टेट रिलेटेड उनके आइडियाज़ हैं सिर्फ उस हद तक उनको हम लिमिट करेंगे। सर एवरीथिंग इन द एम्बिट ऑफ स्टेट। ठीक हो गया। अब स्टेट के अंदर सर पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें उसकी मतलब गवर्नमेंट होती है, उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसके सारे फीचर्स होते हैं। वो कोई इतनी कन्फाइंड चीज़ नहीं है कि जस्ट टर्म जिस तरह से स्टेट है। स्टेट में हर चीज़ आती है, आपकी एक इंडिविजुअल लाइफ से आपकी कलेक्टिव लाइफ, आपकी नेशनल लाइफ तक, ईच एंड एवरीथिंग उसमें आती है। तो कोई भी फिलोसफर है सर, तो फिलोसफर यूनिवर्सल होता है, उसकी फिलोसफी यूनिवर्सल होती है। तो वो यूनिवर्सली जितना भी एक एम्बिट ऑफ स्टेट है, जो भी स्टेट का मैकेनिज्म है, डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर है, जो इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर है, वो सारा उसमें आता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सर वंडरफुल, आई एम लविंग इट, बड़ी अच्छी मजे की डिबेट चल रही है। अच्छा, आप मुझे इसमें आप ये बताएं कि आपने कहा कि ये बड़ा लफ्ज है ना, बड़ा कैच फ्रेज है, ये इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चों को एनालिटिकल थॉट नहीं है, बच्चों को एनालिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। एक तो पहले आप ये बताएं कि इस एनालिटिकल अप्रोच से आपकी मुराद क्या है, और अगर पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट अपनी एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? सर बड़ी ये एक इजी चीज़ है, मैं तो नहीं समझता कि मुश्किल है स्पेसिफिकली फॉर CSS एस्पायरेंट्स, कि CSS एस्पायरेंट जो है एक टीचर, एक मेंटोर, जस्ट गाइड होती है। जिस तरह से एक बुक, आप अच्छी बुक पढ़ते हैं ना तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, तो मेंटोर भी एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर तो एक एस्पायरेंट मेयर उस मेंटोर के ऊपर ही रिलाई करेगा तो डेफिनेटली उसकी वो अप्रोच, एक वो गाइडलाइन तो दे सकता है कि भाई इस तरह से काम कर लो, लेकिन एनालिसिस जो है या एनालिटिकल अप्रोच होना, वो सर जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं और जो स्टैंडर्ड रीडिंग्स है, अगर तो वो उन पे रिलाई करता है, अगर मोर देन 2-3 जितने भी वो पॉसिबली उसके लिए वो सोर्सेज कंसल्ट कर सकता है, फिलोसफी पे है या जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो डेफिनेटली उसकी एक एनालिटिकल अप्रोच बनेगी। सारी सी बात है, एक बंदे ने छापा पढ़ा हुआ है तो एक बंदे ने उसके वर्क्स जो है वो स्टैंडर्ड राइटिंग्स पढ़ी हुई हैं 2-3, तो एनालिटिकल अप्रोच। मैं आपकी जो बात से मैं जो समझा वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा सिर्फ नोट से पढ़ के, जी सर, या किसी एक किताब से पढ़ के चला गया, जो कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिशर की हैं, हम कोई नाम नहीं लेना चाहते, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा यहाँ से एक बात मेरे ज़हन में ये आई कि एनालिटिकल अप्रोच से आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी एक चीज़ को आप कितने डिफरेंट एंगल से आप देख सकते हैं।
डेफिनेटली सर. ठीक है, जितने उसके डिफरेंट ओपिनियन उसके मुतालिक आप बना सकते हैं वो आपकी क्रिटिकल अप्रोच हो जाएगी. सर मैं गुजारिश करूं इफ यू अलाउ मी कि अब सब ने पढ़ा हुआ है स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है. अब वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज डिफरेंट अंडर सेम डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में भी है, यूएस में भी है, इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है, लेकिन वो सेपरेशन ऑफ पावर पाकिस्तान में क्यों डिफरेंट है देन दैट ऑफ अमेरिका. ठीक है. अब जिसने इस पे एनालिसिस किया हुआ है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसे देखा हुआ है, जिसको वहां का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है पता है, यहाँ का पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पता है, तो वही उसका आंसर करेगा. अब जस्ट डेफिनेशन से ये वो जो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एक बुक पढ़ के छापे की बुक, सो टू से आई एम वेरी सॉरी, मुझे बार बार वो मतलब छापा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो पढ़ के जस्ट एनालिसिस नहीं बनेगा. अच्छा, अब फिर ये भी एक बड़ा कैच फ्रेज होता है अक्सर मेरे इंक्लूडिंग मी स्टूडेंट्स को हम कहते हैं जी आप इतनी इतनी किताबें पढ़ें. भाई ये उन्होंने आप पीएचडी तो नहीं करनी, ठीक है, या दे आर नॉट गोना बी अ स्कॉलर, दो के बच्चे बन जाते हैं स्कॉलर भी पढ़ने के बाद. हाउ मेनी बुक्स डू यू रिकमेंड कि आपको सिलेबस का पता है, हम पूरा सिलेबस यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, तो आपके ख्याल में अगर आप सिलेबस की लाइट में की रोशनी में देखें कि जी इस एरिया को कवर करने के लिए ये किताबें, थोड़ा उसको आप मुतल्लिक बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करते हैं? सर वैसे तो अ नंबर ऑफ बुक्स आर देयर, लेकिन जो स्पेसिफिक पोर्शन है सिलेबस के जैसे फिलोसफी है, तो फिलोसफी पे मोर देन टू और 3 बुक्स जो है ना वो कंसल्ट करनी चाहिए. जैसे कि जूड हार्मन एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, लेकिन जूड हार्मन क्या होता है कि एक जो एस्पायरेंट स्टार्ट कर रहा होता है उसे नॉट इजी टू कॉम्प्रिहेंड. ठीक है. तो उसके लिए फिर और भी कुछ सोर्सेज जो है ना उसे कंसल्ट करने चाहिए, जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, और भी अ नंबर ऑफ बुक्स आर देयर. मैं सारी मतलब जो है ना इस वक्त नहीं मेंशन कर सकता. जिस तरह से मुस्लिम फिलोसफर्स है, मुस्लिम फिलोसफर्स के लिए एंटी ब्लैक है, एक कॉमन अगर सोर्स देखा जाए है तो वो मतलब सोटू से एक वो उस लेवल की नहीं है, लेकिन एक शेरवानी की बुक है. तो इस तरह से जो दूसरे स्टेट के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मेनली जो है यहाँ पे मजहरुल हक को कंसल्ट किया जाता है, जबकि मजहरुल हक से अच्छे और भी सोर्सेज हैं. द बेसिक पॉलिटिक्स एक बुक है, जो एक और बुक है अपना एलन ग्रिग्सबाय की. तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज इनकी पब्लिश्ड हैं, तो अगर वो कंसल्ट की जाए तो कॉन्सेप्ट भी बड़ा भी समय लगता है और एनालिसिस भी बनता है डेफिनेटली. अच्छा, मजहरुल हक की किताब जो है वो बेस्ट सेलर है, आपको पता है. मार्केट के अंदर लोगों ने पावर साइंस में मास्टर्स करना हो या सीएसएस के भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको 1 बुक सोल्यूशन चाहिए तो वो कहते हैं, लेकिन आप मजहरुल हक के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हुए हैं? नो सर, मैं सर हाथ धो के नहीं पड़ा हुआ. असल में मेरा बात करने का मकसद ये था कि उसके अलावा भी सोर्सेज हैं जो कंसल्ट. देखें, मजहरुल हक तो हर एस्पायरेंट पढ़ रहा होगा, तो अगर आप कोई डिफरेंट सोर्स पढ़ेंगे तो आप अच्छा उसकी बेसिस पे लिख सकते हैं. बिल्कुल, आपके ओपिनियन में जो मेजॉरिटी आएगी, यही बात हम भी समझाते हैं. मतलब मैं भी जब पढ़ा रहा था तो मेरी अपनी बुक है, आई एम द ऑथर ऑफ बुक, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई मेरी ही किताब के ऊपर ना रहना, साढ़े ते ना रहना, पंजाबी में हम जिसे कहते हैं, ठीक है. यू हैव टू कंसल्ट डिफरेंट सोर्सेज, आपको डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करना पड़ेगा, स्पेशली जो इस तरह के अभी पेपर आए. सर अभी जो 2021 के पेपर्स आ रहे हैं, जी सर, आपने देख तो लिया, लोग तो ऐसे यूट्यूब पे कैप्शन लगा रहे हैं कि इंग्लिश कंपोजिशन का खौफनाक पेपर. हाँ जी, ठीक है. तो आपका ख्याल है पॉलिटिकल साइंस का भी खौफनाक पेपर आएगा? सर अनप्रडिक्टेबल है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो एस्पायरेंट्स जिन्होंने वाकई काम किया हुआ है, जिन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में काम किया हुआ है कि जो उसकी डिमांड है, जो उसकी अप्रोच है, जिस तरह से वो आपका क्रिटिकल एनालिसिस मांगता है, जिस तरह से आपकी एक अच्छी आर्टिकुलेशन ऑफ आइडियाज़ तभी बनती है जब आप डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट करके गए होते हैं. आपने वो स्पून फीडिंग से आप जस्ट जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके तो वहाँ पे अपेयर नहीं हो रहे, तो उनके लिए तो टफ नहीं होगा जिस तरह का भी पेपर होगा, क्योंकि विद इन सिलेबस ही होगा. अगर विद इन सिलेबस नहीं होगा तो वो रिलेट ही करेगा किसी आइडिया को किसी दूसरे आइडिया के साथ, तो मतलब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कल पता चलेगा जब पेपर आएगा. ठीक हो गया. मैक्सिमम कितना स्कोर आ सकता है पॉल साइंस में आउट ऑफ 200? सर मैक्सिमम आई थिंक कि अभी जो देखा है वो 144 तक तो देखे हैं लोग. ठीक है. तो 150 अप्रोक्सीमेटली जो है ना इसे टच किया जा सकता है. अच्छा, फिर एक और पॉपुलर अजम्पशन है कि जो कि आई बिलीव कि इट्स अ गुड
पॉल साइंस के साथ ये कहा जाता है कि अगर आप सी लॉ को या फिलोसफी को आप उठा लें तो ये एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी सी लॉ के अंदर तो आप केस लॉ पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे सी लॉ थ्योरेटिकल होता है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशंस उसने या सिस्टम्स, स्टेट सिस्टम्स बेसिकली डिस्कस किए हुए हैं और उसमें जाके कॉन्स्टिट्यूशंस उसने डिस्कस किए हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, तो वो एज अ सिस्टम लेके चलते। जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भी ओवरऑल स्टेट के सिस्टम के बारे में बता रहा होता है कि स्टेट की नेचर क्या है, स्टेट की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, स्टेट का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसा है। तो अप्रोच ऑलमोस्ट सेम है। मतलब मैं नहीं समझता कि अब केस लॉज उसमें एक्स्ट्रा हैं, उसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स में भी वो थोड़ा बर्डनसम समझते हैं कि वो जरा वो लीगल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा जो है ना वो चला लीगल इस्तेमाल होती है। लेकिन वो डेफिनेटली इसके साथ जेल होता है इसके साथ। और फिलॉसफी के मतलब आपका क्या? सर फिलॉसफी ज्यादा एकेडमिक है, वो भी जिसका बैकग्राउंड है उसके लिए तो मस्ट उसे ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन नहीं जिसका बैकग्राउंड नहीं है तो एक हिसाब से ट्रेंड से हट के है वो, ठीक है, तो ऑप्शन बुरा नहीं है। बुरा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास फिलॉसफी के बड़े ऐसे टीचर भी, हम जरा वो फिलॉसफी पढ़ाते हैं, मज़े की बात है उनके पास हमेशा आपको कम से कम 10-15 स्टूडेंट उनके पास होते हैं। तो वो फिलॉसफी के मैं मतलब बहुत बेहतरीन गुरु है। मैं कहने लगा था कि वो तो किताबों का कीड़ा नहीं होता जिस तरह से। ठीक है। तो फिलॉसफी वो जिस तरह अंदाज में पढ़ाते हैं वो कहते हैं जी 15 दिन के अंदर फिलॉसफी आपकी कवर हो जाएगी, मसला ही कोई नहीं है। और मैंने फिलॉसफी के अंदर स्कोर भी बड़ा हाई देखा है, 85 88 89 तक मैंने फिलॉसफी के अंदर स्कोर देखा है। अच्छा सर, वन फाइनल थॉट जो आप इसके मतलब कुछ चीज़ समझते हैं कि अगर मैंने इसमें डिस्कस नहीं की, क्योंकि हमने एक जो रूटीन में होता है सिलेबस आपने सारा देखा हुआ है, सिलेबस अगर इसका देखें तो सारे एक तो वेस्टर्न फिलॉसफी आ जाती है पेपर 1 के अंदर, फिर मुस्लिम फिलोसफर्स आ जाते हैं, और जो आपका पेपर 2 उसमें सर क्या क्या चीज़ें आती हैं भला? सर पेपर 2 में सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। उसमें ये हमारे पास सामने सिलेबस पड़ा हुआ है, मैं डिस्कस कर देता हूँ कि पेपर 2 में सर कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स है, मींस के यूएस है, यूके है और फ्रांस, जर्मन। देन रीजनल ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन, ये जितने भी आपके रीजनल एंड ग्लोबल फोरम्स बने हुए हैं उसके हवाले से है। देन पार्ट बी है उसका कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। पॉलिटिकल सिस्टम टर्की का है, ईरान का है, उसमें मलेशिया का है, इंडिया का है, चाइना का है। तो ये सिस्टम्स भी विद इन कॉन्स्टिट्यूशंस ही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशंस ही बताते हैं कि सिस्टम्स किस टाइप के हैं। देन पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया कॉलोनियल पीरियड, ये आपका सारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस जो मतलब ऑल्दो एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन वो उसमें से आज भी अगर पास पेपर्स उठा के देखें तो 2 क्वेश्चंस मस्ट पूछता है, एक पर्सनैलिटीज पे पूछता है, एक वैसे पूछ लेता है। ठीक हो गया। तो देन नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री है 1947 से ऑनवर्ड टिल नाउ, उसमें सिविल मिलिट्री रिलेशंस आते हैं, उसमें डेमोक्रेसी है, उसमें इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे खड़े हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस ओवरऑल। सर ये बहुत अच्छा एक जो है ना मतलब मजे की डिबेट है ये सारी जो पाक अफेयर्स के रिलेटेड है, करंट अफेयर्स रिलेटेड, ऐसे के अंदर भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ से लग रहे हैं। जी डेफिनेटली। तो देन सर इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, वो उसमें से फॉरेन पॉलिसी है। देन जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड जो ओवरऑल एक फिनोमिनन रहा है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से वो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी अप्रोच के साथ और रिच अप्रोच के साथ, रिच रिसोर्सेज के साथ अगर ये कंसल्ट की जाए, ये डिस्कस की जाए, तो ये आपने वैसे भी ये पार्ट जो बी है इसका पेपर बी है, सॉरी पेपर 2 है, तो ये वैसे भी एक एस्पायरेंट ने ये सारी चीज़ें करना है। ये क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं था ना, मेरा आईआर था, जो आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो ये मुझे मेरा कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल बड़ा डिफरेंट था। जब मैंने सीएसएस किया था, बॉटनी था, एग्रीकल्चर था, फॉरेस्ट्री था और इंडो पाक हिस्ट्री था, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें हमने भी पढ़ी, हमने भी सारी चीज़ें तैयार की। क्योंकि जो ऐसा एस्पायरेंट है उसको स्पेशली ये पेपर 2 तो समहाउ तैयार करना ही करना है। मस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप काइंडली ये बताएं कि आप पढ़ाते भी हैं। जी सर। तो एक ड्राया जाता है जो पॉलिटिकल साइंस से मुतल्लक जी वो बड़ा कम्प्लेक्स है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा लंबा चौड़ा है, तो कितना का टाइम दरकार है इस पूरे कोर्स को कवर करने के लिए? सर अप्रॉक्सीमेटली कोई 7 to 8 वीक्स। 7 to 8 वीक्स में, इंक्लूडिंग असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग सर।
अच्छा, फिर एक थोड़ा सा ये होता है कि कुछ टीचर्स ये भी करते हैं कि जी इसके लिए पहले आपको कुछ बेस बनानी पड़ेगी जी, आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का, कोई ऐसा इसका प्री रिक्विजिट भी है कि पहले आप वो अलग डे पढ़ के आए तो फिर आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं? नहीं सर वो देखिए ना, एक एस्पायरेंट आता है, वो करंट अफेयर्स पहले उसने पढ़ा नहीं होता, इवन इंग्लिश एसे कॉम्पोजिशन ये वो चीज़ें भी वो पहले एक्लेमेटाइज नहीं होता, वो आके इसको स्टार्ट करता है तो वो सारी चीज़ें वो उससे एक्लेमेटाइज होता है, अवेयर होता है। अब ये अगर तो पता चल जाए कि फिलोसफी हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, तो वो एक लेक्चर में सारी जो बेस है वो बन जाती है, ठीक है, कि आपके ये सारे जो ये फिलोसफीज मेनली ट्रिकी पोर्शन है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो भी इन्हीं फिलोसफर्स ने जो फिलोसफीज दी हैं, थ्योरीज दी हैं, उन्हीं की बेसिस पे सारे डिस्कस होने, वो एप्लीकेशन है उसमें, ठीक है। अब वो अगर इस तरह से वो बेस बना दी जाए पहले लेक्चर में, पहले 1-2 लेक्चर्स में, तो क्लियर होता है। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, कल आप फ्री होंगे सर? इंशाल्लाह। चलें, कल हम जनाब सर जो है, कल पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी आ रहा है, तो शाम को जो पेपर आएगा उस पर हम एक एनालिसिस करेंगे और सर से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि 1-2 जो क्वेश्चंस हो गए ना पॉलिटिकल फिलोसफी के रिलेटेड, वो आपसे सर से सॉल्व भी करवाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आपको एक तो सर के मतलब मैं बता दूं, आपके लिए हम बेहतरीन टीचर लेके आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। आप ये सारी वीडियो सुन के हमें आपने बताना है कि सर के साथ जो हमारी डिस्कशन रही है वो कैसी रही है और आपने उनको कैसा पाया, ठीक है। और कमेंट्स के अंदर आपको क्वेश्चन हैं तो वो भी हमें बता दीजिएगा। सर जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर एक नई डिबेट के साथ ऑन पॉलिटिकल साइंस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।